کل ہند صنعتی نمائش کی اختتامی تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، کمشنر پولیس سی وی آنند کے بشمول سوسائٹی کے ارکان نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ریاستی حکومت کے تعاون اور حوصلہ افزائی سے سوسائٹی ارکان کی جانب سے نمائش کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس نمائش سے وصول ہونے والی آمدنی کو تعلیمی اداروں اور چیریٹیبل ڈسپنسریز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بہتر خدمات انجام دینے والے ملازمین پولیس اور بعض اسٹالز کی انتظامیہ کو بھی اس موقع پر ایوارڈز پیش کیے گئے۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہاں پر ایگزیبیشن میں لوگ کھانے کے لیے بھی بہت آتے ہیں۔ یہاں پر خاص طور سے پستہ ہاؤس کی حلیم ہے، مسقطی برانڈ ہے، تو یہ لوگوں کے لیے بہت سے اسٹالس رکھتے ہیں۔ لوگ اس سے کچھ چلتے پھرتے ایگزیبیشن دیکھتے ہوئے، مجھے کل ایک شخص نے فون کیا تھا، فون پہ ایک بات بتایا تھا کہ ہوم منسٹر صاحب ایگزیبیشن تو بہت اچھی چل رہی ہے پر پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ میں کہا ایگزیبیشن میں پیسے دے کے خرید کے پینے کا پانی ملتا ہے، آپ کو بانٹنے کا پانی نہیں ملتا۔ ایگزیبیشن میں لوگ بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، سروس کرنے کے تو لیے ڈپارٹمنٹ لوگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایگزیبیشن میں پانی بھی پلاتے ہیں لوگ، مگر دکان آپ جو ہوٹلوں میں بیٹھتے تو وہ لوگ سروس دیتے ہیں، آپ خرید کے پانی پیجیے۔ ایگزیبیشن دیکھنے جا رہے ہیں تو پانی بھی خرید کے پیجیے۔ تو لوگوں کا ایسا ذہن ہوتا ہے، ہر چیز حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے، فری ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں سبھی لوگوں کا جو یہاں پر آئے یقیناً میں ان کا استقبال بھی کرتا ہوں، اور سبھی ہمارے سوسائٹی کے ایگزیبیشن سوسائٹی کے تمام جو بھی ممبرس ہیں، عہدیدار ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو لوگ اچھی طریقے سے یہاں پر سروس دیا ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں 13 نئے پولیس اسٹیشنوں کے قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے حکومت نے جی او جاری کر دیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف زونز میں ہر ایک زون کے لیے ایک وومن پولیس اسٹیشن بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں جن نئے پولیس اسٹیشنز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ان میں دومل گڑا لیک پولیس اسٹیشن، خیرت آباد، وارسی گڑا، تاڑبن، بڈلا گڑا، آئی ایس سدن، ٹولی چوکی، گڈی ملکاپور، ماساب ٹینک، فلم نگر، رحمت نگر اور بورا بنڈا شامل ہیں، جبکہ مختلف زونز میں وومنز پولیس اسٹیشنز بھی قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نئے ٹریفک پولیس اسٹیشنوں کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا، جن میں ماریڈ پلی، بوئن پلی، جوبلی ہلز، ایس آر نگر، نمبر پیٹ، نلا کنٹا، نارائن گوڑا، چلکل گوڑا، بہادر پورہ، سنتوش نگر، چندرائن گٹا، ٹولی چوکی، لنگر ہاؤس شامل ہیں۔ میئر جی ایچ ایم سی کے طور پر گدوال وجے لکشمی نے 2 سال مکمل کر لیے ہیں۔ بعض کارپوریٹرز، بلدی عہدیداروں اور ملازمین نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میئر نے حیدرآباد شہر کی ترقی اور کاموں کی پیش رفت پر لکھی گئی کتاب ہمارا حیدرآباد 2022-23 کی رسم اجرا انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے تعاون سے گزشتہ 2 سال سے شہر کی ترقی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ریاست میں برسر اقتدار آنے کے مشن کے ساتھ بی جے پی ریاست بھر میں 11,000 کارنر میٹنگز منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ 10 فروری سے ان میٹنگز کا آغاز بھی ہو گیا ہے، جو 25 فروری تک جاری رہیں گی۔ ایک حلقے میں 90 کارنر میٹنگز منعقد کرنے کا پارٹی منصوبہ رکھتی ہے۔ ان میٹنگز میں کے سی آر حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے گا اور مرکزی حکومت کی اسکیمات سے عوام کو واقف کروایا جائے گا۔ ناقص اسٹریٹ لائٹس کے مسئلے پر جی ایچ ایم سی کو ہزاروں شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے 6 زونز میں اس طرح کی شکایات مل رہی ہیں۔ ہر زون میں 60 تا 69 اسٹریٹ لائٹس ہیں۔ کئی علاقوں میں ان لائٹس کے بند ہونے اور بعض علاقوں میں دن کے اوقات میں لائٹس کھلی رکھنے کی شکایات مل رہی ہیں۔ اہم شخصیات والے خیرت آباد زون میں کئی شکایات ملنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے میر چوک ٹریفک پولیس پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والوں کو ٹریفک پولیس کی جانب سے مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے پولیس پر شدید برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے ٹھیلا بنڈی والوں کو ہراساں کرنے والے ٹریفک عملے کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سنگراری ٹالریز کے ورکرز کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ بی ایم ایس نے کرتے ہوئے دھرنے کی اپیل کی تھی، تاہم دھرنے کے لیے روانہ ہونے والوں کو پولیس نے مختلف مقامات پر حراست میں لے لیا۔
پیداپلی ضلع کے گوداوری کھنی میں بی ایم سی تنظیم کے ریاستی صدر ستیا کے بشمول یونین کے دیگر قائدین کو پولیس نے حراست میں لے لیا جو دھرنے کے لیے حیدرآباد آ رہے تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے کرماگوڑا ڈویژن کی قاسم کالونی کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر کاموں کی پیش رفت کے سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا اور کاموں کی جلد تکمیل کی ہدایت دی۔ اس موقع پر کرماگوڑا کے نمائندہ کارپوریٹر شفاعت علی، جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیدار، ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ سائبر آباد پولیس نے اس کے حدود میں واقع 32 فارم ہاؤسز میں خصوصی تلاشی مہم چلائی اور 4 فارم ہاؤسز میں جہاں پر غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں وہاں سے 25 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے حقہ، شراب کی بوتلیں، جوئے کے کارڈز، نقد رقم اور دیگر اشیاء ضبط کر لی۔ پولیس نے معین آباد پولیس اسٹیشن کے 2 فارم ہاؤس، ایک شمس آباد پولیس اسٹیشن کے فارم ہاؤس اور میرچل پولیس اسٹیشن کے ایک فارم ہاؤس پر یہ کارروائی انجام دی۔ ڈی سی پی سائبر آباد نے بتایا کہ انہیں مسلسل یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ سائبر آباد حدود کے بعض فارم ہاؤسز میں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں۔ گنڈی پیٹ کے قریب کار نہر میں گر گئی۔ اس حادثے میں 3 طلبہ شدید طور پر زخمی ہو گئے جن کو علاج کے لیے مقامی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ان زخمی طلبہ کی شناخت گٹکیسر کے ایک کالج کے طلبہ کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ تیز رفتاری حادثے کا سبب رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار کے گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر محکمہ سیاحت کے صدر نشین یو سرینیواس اور ان کی بیوی نے شادی کی سالگرہ کے موقع پر پودا لگایا۔ راجستھان میں اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں سرینیواس اور ان کی بیوی نے یہ پودا لگاتے ہوئے ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ گورولی پروجیکٹ سے متاثرہ خواتین نے فوری طور پر انہیں معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایم ایل اے کیمپ آفس پر دھرنا دیا۔ اس دھرنے سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ ان خواتین نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ فیکس 6 لاکھ روپے معاوضہ اور باز آبادکاری پیکج دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس احتجاج کے موقع پر رکن اسمبلی ستیش کمار کیمپ آفس پہنچے۔ میرچل کی قومی شاہراہ پر پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ جنگلات کی ترقی کے صدر نشین و بی آر ایس لیڈر او پرتاپ ریڈی کی کار کو ایک شخص نے اپنی بائک کے ذریعے ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ یہ شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پرتاپ ریڈی کومپلی میں مکان سے توپران کی سمت جا رہے تھے کہ میرچل کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ میرچل پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نرمل ضلع کے کونڈاپور میں گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اتفاقی طور پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے جس کے نتیجے میں گودام میں رکھا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں 20 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سب انسپکٹرز اور کانسٹیبلز کے عہدوں کو پر کرنے کے لیے جاری اعلامیہ ابتدا سے ہی تنازع کا شکار دیکھا جا رہا ہے۔ پریلیمز میں 7 سوالات کے غلط ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بعض امیدوار عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر 7 نشانات پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے امیدواروں کو دیے۔ بعد ازاں فزیکل ایونٹس میں قد کو ڈیجیٹل میٹر سے ناپنے پر 1 سینٹی میٹر کم قد دکھانے کا دعویٰ کرتے ہوئے بعض امیدوار ایک مرتبہ پھر عدالت سے رجوع ہوئے۔ عدالت کی ہدایت پر 1 سینٹی میٹر قد کم ہونے سے نااہل قرار دیے گئے تمام امیدواروں کو ایک اور موقع دیا گیا۔ موجودہ فزیکل ایونٹس میں لانگ جمپ پر تنازع دیکھا جا رہا ہے۔ ماضی کے اعلامیے میں 3.8 میٹر لانگ جمپ کو اب 4 میٹر تک بڑھانے پر کئی امیدوار کوالیفائی نہیں ہو پائے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ دیگر ریاستوں بشمول فوج میں 3.8 میٹر لانگ جمپ ہوتی ہے، تاہم پولیس میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے 4 میٹر کر دیا گیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے نارائن کھیڑ ایچ پی پیٹرول پمپ میں چوری کی واردات پیش آئی۔ چور نے نقد رقم والے بیگ کے علاوہ سیل فونز کی چوری کر لی۔ فون کی ٹارچ لائٹ کھولتے ہوئے شام میں اس واردات کو انجام دیا گیا، تاہم یہ واردات کے مناظر وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئے، جس کے بعد اس بات کی شکایت پولیس سے کی گئی۔
संगारेड्डी जिले में चलती लारी में आग लग गई। इस लारी में चावल के थैले थे। लारी का टायर अचानक फट पड़ा और इसमें अचानक आग लग गई। मिरियालगुड़े से ये लारी नांदेड़ की सिमत जा रही थी। मुकामी अफराद ने आग बुझाने में ताउन किया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। बिहार के औरंगाबाद में सरकारी इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे नीतीश कुमार पर नामालूम शख्स ने कुर्सी से हमला कर दिया। ताहम कुर्सी उनके करीब जा गिरी। उनका सिक्योरिटी अमला फौरी तौर पर चौकस हो गया। इस हमलावर की तलाश की जा रही है। पुलवामा में हुए हमले के 4 साल मुकम्मिल हो गए हैं। इस हमले में हलाक बाहिम्मत जवानों को खिराज पेश किया जा रहा है। मुल्क भर में इनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान पुलवामा के शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन शोहदा की हिम्मत हमें मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की तरगीब देती है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 2019 के पुलवामा शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने इन शोहदा की हिम्मत की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि इन शोहदा की हिम्मत हमें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में जज्बा देती रहेगी। सदर अमेरिका बाइडन ने अपने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो फौरी तौर पर रूस छोड़ दें। यूक्रेन के साथ जारी जंग के पेश नज़र उन्होंने ये अपील की। दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी अरसे से जंग जारी है, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी ख़तरात और अमरीकी शहरियों को पेश आने वाले इम्कानी मसाइल के पेश नज़र सदर अमेरिका ने अपने शहरियों से ये अपील की है। सैफाबाद पुलिस हुदूद के तहत एसी गार्ड बस्तीवाड़ा में जीएचएमसी की जानिब से गैर कानूनी मकानात को मुनहदम कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि अदालती अहकामात के मुताबिक बस्तीवाड़ा के मकीनों का तख्लिया किया जा रहा है। ताहम मुकामी लोगों ने बल्दी हुकाम को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में हाथापाई हुई। अजीम तर बल्दी हैदराबाद के ओहदेदारों ने बताया कि कई बार नोटिसें जारी की गई, लेकिन मकानात खाली नहीं किए गए तो वो अदालत से रुजू हुए। अदालत के हुक्म के मुताबिक आज सुबह से ही इन्हिदामी कार्रवाई शुरू की गई। मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी और आसिफ जा अव्वल ता आसिफ जा शशम के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सरफखास के साहिबजादगान ने प्रिंस अजमत जा बहादुर के नवे निज़ाम की हैसियत से तखर्रुरी का खैर मकदम किया है। सदर मजलिस साहिबजादगान मीर हशमत अली खान साहिबजादा, मीर विखारुद्दीन अली खान साहिबजादा, मीर फेरोज अली खान, नवाब फैज मोहम्मद सिद्दीकी साहिबजादा, मीर खादर अली खान और नवाब मीर खमरुद्दीन अली खान आसिफ जा अव्वल के परपोते व जनरल सेक्रेटरी नवाब मीर ज़हीरुद्दीन अली खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए अजमत जा बहादुर से मुकम्मल इजहार यगानगत किया और कहा कि प्रिंस अजमत जा बहादुर ही इस मकाम और मनसब के मुस्तहिक़ हैं। आपको बता दें कि 2 रोज़ पहले ही रौनक यार खान को हैदराबाद के नवे निज़ाम के तौर पर मुंतखब करने का ऐलान किया गया है। मीर ज़हीरुद्दीन अली खान ने इस पस मंज़र में कहा कि किसी साहिबजादी के गैर साहिबजादे से शादी करने पर उनकी औलाद का शुमार साहिबजादगान में नहीं होता है। साहिबजादगान से मुराद आसिफ जाही खानदान की औलाद है। मजलिस साहिबजादगान ने अजमत जा बहादुर निज़ाम नहुम को साहिबजादगान के तालीम, सेहत और रिहाइश के मसाइल से वाकिफ करवाया और साहिबजादगान रेसिडेंशियल सोसाइटी के लिए ज़मीन मख्तस करने की भी दरख्वास्त की। नायब सदर मजलिस साहिबजादगान मीर विखारुद्दीन अली खान ने आपसी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि मजलिस साहिबजादगान किसी फर्द या गिरोह से इख्तिलाफात के बगैर मिलजुल कर इज्तिमाई मफाद के लिए काम करने पर यकीन रखती है। ये बाहर फैमिली में शादी होती है आफ्टर 1950, उसकी औलाद को विरासत नहीं मिल सकती। वो उसकी अपनी लड़की की ज़िंदगी तक ही उसको अपने अलाउंसेस या उसकी बेनिफिट्स उसको मिलते रहेंगे। उस लड़की के औलाद को बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। वो 1950 के ट्रस्ट में, इट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट डीड, और ये ट्रस्ट डीड मीर उस्मान अली खान बहादुर ने बहुत सोच समझ के बनाई थी। तो यू राइट, यानी जो 9th निज़ाम जो अपने आप को जो बता रहे हैं, जो रौनक यार खान, वो है मीर महबूब अली खान की बड़ नवासे, ठीक है ना। तो वो उनकी बेटी के बेटे है, जिसकी शादी है बाहर हुई है, गैरों में शादी हुई है, तो वो हमारे ख़ानदान के नहीं हो सकते। ख़ानदान हमारा जो चल रहा है वो लड़कों से चलता है, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को उसके बारे में दोहराए नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले मीडिया को ये सोचना चाहिए कि 9th निज़ाम डिक्लेयर हो चुके हैं, तो फिर ये कौन है? समझ मेरी बात। देखिए, ये जो फैमिली के अंदर एक लेगेसी है। हाँ, ही इज अ फैमिली हेड।
from first निज़ाम to 7th निज़ाम और 8th निज़ाम, but it is for the dynasty purpose. ये हमारी डायनेस्टी की, ये हमारी लेगेसी है. इसी तरह से जो सारे हिंदुस्तान में जो दूसरे रजवाड़े हैं या उनके अपने बादशाह अपने जो घरों में जो डिक्लेयर करते हैं, तो वो अपने फैमिली के लिए हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेयर करते हैं. तो वी आर नॉट क्लेमिंग कि ही इज अ निज़ाम ऑफ द रूलर ऑफ दक्कन और हैदराबाद. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए, टाइटल के लिए होता है, जो जिंदगी भर ता क़यामत तक हम इसको मेंटेन करते रहेंगे. वो टाइटल, द टाइटल हैज बीन abolished because just for the Indian government, but within the family this title will remain there and we'll keep it alive. This will be remain there. आसिफ जाही डायनेस्टी जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, जब तक कि ता क़यामत रहेगी, आसिफ जाही डायनेस्टी, द रॉयल फैमिली फ्रॉम द फर्स्ट निज़ाम, जो भी आते रहेंगे, हमारी डायनेस्टी को हम इंशाल्लाह उसकी लेगेसी को बरकरार रखेंगे. आप लोगों को क्यों नहीं बोला? कि हुआ ये था कि इंतकाल के बाद में जब छोटी सी प्राइवेट सेरेमनी हुई थी, इस पर हम सबको पता था कि प्राइवेट सेरेमनी है, हम खुद इसमें ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहे थे. एक प्राइवेट सेरेमनी में इसको बनाया गया उनको, और उस्मान अली खान बहादुर का इंतकाल सिर्फ आपने दी के कागज ट्रस्टी है वो दोनों नजर आए, वो ट्रस्टी है. वो मुकरम ट्रस्ट से बोलो, फैमिली से नहीं है. नहीं, आपका कहना है कि फर्स्ट टू 6 निज़ाम की फैमिली को ये इत्तला दी जा चुकी थी, लेकिन एक प्राइवेट सेरेमनी में इस कॉर्नेशन को पूरा किया गया और हमको उससे कोई इतराज़ नहीं है. और क्योंकि हम उनको 9th निज़ाम, मीर अज़मत जाह बहादुर को 9th निज़ाम मानते हैं, और हमने खुद रिक्वेस्ट किया था, यानी हमने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी कि जल्द से जल्द 9th निज़ाम. ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने गांजे की मुंतकिली करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 110 किलो गांजा जब्त कर लिया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद में बिल्किस अली असगर, सैफुद्दीन मुर्तजा शेख शामिल हैं, जबकि उनके 3 साथी मफरूर हैं. पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि अली असगर और बिल्किस ने शेख से अराकू से गांजा खरीदने को कहा था, ताहम मुंबई जाते हुए पुलिस ने उन्हें अफजलगंज इलाके में पकड़ लिया. CV आनंद ने गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस इस टोली से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया है. 40-50 మంది కన్స్యూమర్స్ హైదరాబాద్లో, ముంబైలోనే వాళ్ళకు ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో దాదాపు 70 మంది పేర్లు వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా మేము ముంబై పోలీస్కి తెలియజేస్తున్నాం. మా దగ్గర మేము క్రమం కొన్ని రోజుల తర్వాత కూడా వారిపైన యాక్షన్ తీసుకోవడం, ఐడెంటిఫై చేశాము. వారిని అందరిని పిలిపించి కూడా వారికి ఏ విధంగా ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు అని చూస్తాం. దీని ముంబై వరకు వెళ్తే ఈ దర్యాప్తులో అక్కడ ఒక కింగ్ పిన్ ఉన్నాడు. అతని పేరు ఇప్పుడు మేము చెప్పదలుచుకోలేదు. అతని వివరాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ అతని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడితే అతను ఎస్కేప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కనుక మేము అనుకుంటున్నాం అతను ఫ్యాక్టరీ లాగా నడుపుతున్నాడని మేము భావిస్తున్నాం, కానీ తర్వాత తెలియజేస్తాం. కానీ అతని కింద ఉన్న అనుచరులందరూ కూడా వారందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆయనకు ముఖ్యమైన అనుచరులు వికాస్ మోహన్ కోన్మూర్ ఎలియాస్ విక్కీ మరియు దినేష్ మోహన్ కోద్మూర్. వీళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు, నవీ ముంబైలో ఉంటారు. ఈ వికాస్ అనే వ్యక్తి PWDలో పనిచేస్తున్నాడు, డిపార్ట్మెంట్లో. వీరు ఈ ముంబైలో MDMA డ్రగ్ ముఖ్యమైన సప్లయర్స్. వీరే అక్కడ చాలా సూత్రధారులాగా కనిపిస్తున్నారు. వీరు साहिबजादा मीर निज़ाम अली खान ने मजलिस साहिबजादगान का नाम इस्तेमाल करते हुए जाली सोसाइटी कायम करने का इल्जाम आयद किया है. मीर जुल्फिकार अली खान जानदार जाह बहादुर के पोते मीर निज़ाम अली खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी सन 1932 में कायम की गई थी, ताहम उनके साथ काम करने वाले कुछ अफराद ने जो आला ओहदों के ख्वाहिशमंद थे, मजलिस साहिबजादगान के नाम से सोसाइटी कायम की है, जो कि जाली है. उन्होंने जाली सोसाइटी कायम करते हुए आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है और इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया है. साहिबजादा मीर निज़ाम अली खान ने गैर कानूनी हरकत करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का इंतबाह दिया है और मीडिया को तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया है. कि खुदा न खास्ता हम अपने पर्सनल कोई मकसद के लिए इसमें आए हुए हैं. और एक बात ये थी कि एक सोसाइटी थी 268/2004 जो रजिस्टर्ड हुई थी. ये ज्वेलरी ट्रस्ट के केस के बाद में रजिस्टर हुई थी. मीर मुजफ्फर अली खान ने रजिस्टर किया था इसको, लेकिन सारे अफराद सोसाइटी के मेंबर्स का इंतकाल हो गया. हम रिन्यू करने गए थे. तो जब ये ज़हीरुद्दीन अली खान साहब भी आके क्लेम करे, इन्हों हमारे पे कंप्लेंट भी करे थे, तो हम जाके वापस दूध बोली PS में कंप्लेंट करे और ये कोर्ट का ऑर्डर है OS
ऑफ 2003, जिसमें ये बोला गया कि जो मुजफ्फर अली खान की जो सोसाइटी है वो नहीं चलेंगी, और लायक अली खान मरहूम की जो सोसाइटी फॉर्म की है उनकी काम करेंगी। हम लायक अली खान मरहूम की सोसाइटी को जो फॉर्म किए थे उसको ही आगे बढ़ाते भी आ रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे। और ये साहब के नाम पे हम लोग पुलिस कंप्लेंट भी करें, चलो भाई हमारे खानदान के अफराद खानदान है बोल के सब खामोश बढ़ गए। ये अचानक 2022 में वो सोसाइटी कब बना है, कब क्या करे, कभी डिक्लेरेशन ही नहीं मिला। और ये हम मजलिस साहिबजादा हमारी सोसाइटी का सियासत में आधे पेज का हमारा नोटिस है। हम हर तरह से बयाना देते हुए आ रहे हैं कि मजलिस साहिबजादा सोसाइटी 1089 ऑफ 2020 है। अरे साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा। एक सरबरा उसको बिठा के हम समझा के लेके आए, अब गैर गलत बातें उनके बारे में बोलेंगे तो क्या होगा। खानदान की मदद करने के लिए एक आदमी आया, जो आदमी मदद करना वो तो यहाँ है नहीं, ना कुछ पूछ रहे हमारे को। अब खानदान के लिए कुछ करेंगे। मैं पूरे साहिबजादी और साहिबजादों से अदबन पाँव पड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ को समझिए। ये पहली वक्त हम लोग आगे बढ़ के हम हर चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि भाई मदद करना चाह रहे हैं। ये हर चीज़ है सो ज़ाती मफाद पे, ज़ाती चीज़ों पे चले आ रहे हैं, ये सब गलत बात है। आप लोगों को हम लोगों को सबको मुत्तहद होना। और ज़हीरुद्दीन साहब निज़ामुद्दीन अली खान साहब को बोले कि मैं आके मिलता हूँ, बात करेंगे। आप हर टाइम पे राब्ते में है निज़ाम साहब कि भाई आप मिल को बात करिए, मिल के बात करिए, आइए बोले, आ रहे बोल के बोल रहे, बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या मंशा है कि अलग सोसाइटी बना के आप अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फलकनुमा पुलिस ने कत्ल का मामला हल करते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते पुराने शहर के इलाके नवाब साहब कुंटा में 30 साल मोहम्मद अयाज नामी शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने अंदरून एक हफ्ता 4 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया, जबकि एक खातून शाकिरा बेगम मफरूर बताई गई है। फलकनुमा ACP शेख जहांगीर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि मकतूल अयाज ने साल 2015 में कत्ल किया था और उसी का इंतकाम लेने के लिए इन 4 अफराद ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने मीडिया को दीगर तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। गुड इवनिंग। ये फरवरी महीना 6 तारीख के दिन रात में 9:30 के टाइम पे एक मोहम्मद अयाज इलियास अबू, उनके केस पोल्ट्री के ड्राइवर है, इनको ये मेजेस्टी सैलून के पास संजय गांधी नगर में कत्ल किया गया। उस सिलसिले में हम केस रजिस्टर करके हम लोग तहकीकात करें। उसमें जो है सो मोहम्मद आसिफ इलियास पोखंडी, शेख खालिद इलियास करंसी खालिद, मोहम्मद अफरोज खान, लेट मोहम्मद नदीम कुरैशी, ये 4 इनाम हुए। अब हम वहाँ पर सीन में मिले सो साइंटिफिक एविडेंस और जो आई विटनेसेस उसके एविडेंस कलेक्ट करके हम लोग करें। इसमें लोगों को कल ये खबरस्तान के पास आए थे, हम लोग अरेस्ट करें संजय गांधी नगर में। ये लोग हमारे को इसका एक हिस्ट्री है। ये केस का असल चीज़ क्या है बोलते, ये मोहम्मद आसिफ के चाचा को ये कत्ल किया थाना पत्थर पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 2015 में ये मर्डर केस में लोग ये थे मरहूम मोहम्मद अयाज ये थे। उस सिलसिले में ये लोग के बीच में व्यवहार था, तो वो व्यवहार भी दिल में रखने के 1-2 महीने पहले ये मरहूम एक घर लिए यहाँ पर फलकनुमा एरिया में, वो घर लिए तो वहाँ पर जो सो ये शेख मोहम्मद आसिफ इलियास पोखंडी जो वादा है, उनके वादा जो है सो ये लोग झगड़ा हो तो उसके बाद में ये मरहूम जो है उनका घर काला पत्थर एरिया में शिफ्ट करे। लेकिन उनका वादा ये लोग शाकिरा बेगम बोल के इनका बेटा आसिफ ये काला पत्थर पुलिस स्टेशन में इनका सस्पेक्ट शीट है, इनको इंस्टिगेट कर इनको उसको खत्म कैसा भी करना है। ऑलरेडी चाचा को मार डाला और मेरे से भी लड़ा बोल के बच्चे को फोन करके आसिफ आया और उसका दोस्त इन्हें शेख खालिद इलियास करंसी खालिद ये काला पत्थर का रोडी शीटर है और इनका दोस्त मोहम्मद अफरोज खान, ये 7 प्रॉपर्टी ऑफिसर जो भी है और नदीम कुरैशी। ये नदीम कुरैशी की फलकनुमा पुलिस स्टेशन में सस्पेक्ट शीट है, प्रॉपर्टी ऑफिसर्स में इससे पहले अरेस्ट करे थे। ये लोगों को मिला लेके इनका रिक्की करके इनको मर्डर किए। इसमें ये लोगों को मुलजिमों को गिरफ्तार करने में हमारे फलकनुमा पुलिस और
निजाम खानदान की जानशीनी के लिए शाही खानदान के अफराद दो गिरोह में बंटकर ये दावा कर रहे हैं कि वो मजलिस साहिबजादगान के हकीकी मेंबर्स हैं। निजाम हश्तो मुकर्रम जहाँ बहादुर को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि नवे निजाम के ओहदे के लिए जंग छिड़ गई। 2 रोज पहले एक गिरोह ने अजमत जा को निजाम नहुम के तौर पर मुंतखब करने पर एतराज उठाते हुए रौनक यार खान को हैदराबाद के आसिफ जाही खानदान के नवे निजाम के तौर पर मुंतखब करने का ऐलान किया था। जैसे ही ये ऐलान हुआ, एक गिरोह अजमत जा की हिमायत में उठ खड़ा हुआ और नवे निजाम के तौर पर अजमत जा बहादुर की हिमायत की। दोनों गिरोह अब मद्दे मुकाबिल होकर दावा कर रहे हैं कि वही असल साहिबजादगान है। दोनों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इल्ज़ाम तराशियां भी की जा रही हैं। दोनों गिरोह ने मीडिया से मुखातिब भी हुए और मीडिया के इदारों के खिलाफ ही कानूनी चाराजोई करने की धमकियां भी दी। इतना ही नहीं, एक गिरोह की जानिब से दूसरे गिरोह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाम पर पहुंचकर हंगामा आराई किए जाने का वाक़या भी पेश आया है। ताहम एबिट्स पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मामले की तफ्तीश की है। दोनों गिरोह का मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा, ये अभी तक तो पता नहीं चल पाया है। ताहम ये बात काबिल गौर है कि शाही खानदान के अफराद का जानशीनी के लिए मद्दे मुकाबिल होना न सिर्फ आसिफ जाही खानदान की छवि को मुतासिर कर रहा है, बल्कि मफाद परस्त अनासिर को फ़ायदा उठाने का मौका भी फराहम कर रहा है। बहुत गलत है बात, अल्लाह हिदायत दे लोगों को। इतनी गलत बात है कि हमारी कम्युनिटी को धोखा दे रहे। बैठ के आके एक ही नाम रजिस्ट्रेशन होता क्या बोले आप? 20 में होके फिर 10 वक्त बोला हूँ भाई, आगे कादर अली खान हमारी कमेटी में थे, कादर अली खान, ज़फ़रुद्दीन खान साहब और ये ज़हीरुद्दीन खान साहब। अरे अचानक नई कमेटी सेम नाम से कैसा बना दे साहब आप? ये लोग 23522 में कैसा बनाते साहब? सेम नेम से बोलिए आप, कैसा होता बोलिए? गवर्नमेंट को भी इसकी वो करना पड़ेगा इंक्वायरी। नहीं कानूनी हम कानूनी करना चाह रहे हैं, हम इसलिए आपके सामने आए यहाँ पे, हम कोई छुपे हुए नहीं है। अब आप देखो, आप मीडिया को हम बुलाए तो खरीद लिया क्या भाई? मीडिया को क्या मीडिया को खरीद लिया क्या? मीडिया हर एक के लिए काम करता है। मीडिया किसी एक पार्टी के हाथ से काम करते क्या आप लोग? अरे भाई जो सच है वो हम आपको सामने बयान कर रहे हैं, ये हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है पूरे। देखिए मीडिया में बैठ के 5 लाख तरीके से बात करेंगे, हम गलत है, हम यहाँ से खामोश चले आएंगे। 1089 ऑफ 2020 और इसमें कादर अली खान खुद आउटगोइंग मेंबर है। कारवान के AIMIM रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने HMWSSB के 297 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कौसम मोहिउद्दीन ने हैदराबाद वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और DPO से मुलाकात की। उन्होंने जोन 3 में सीवरेज लाइंस के 297 करोड़ रुपए के रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का खुसूसी तौर पर जायजा लेते हुए तफसीलात भी हासिल की हैं। आपको बता दें कि सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हल्के कारवान में सीवरेज लाइंस को मजबूत बनाने और रीमॉडलिंग के लिए 297 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। HMWSSB ने एजेंसी को माह रमजान के आगाज से कबल टोली चौकी, हकीम पेट, MD लाइंस, नदीम कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी व दीगर इलाकों में कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। MLA के हमरा मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स, सीनियर कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न, वाटर प्रोजेक्ट और दीगर डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया। जो हालिया के अंदर 297 करोड़ की लागत जो सदर मोहतरम इफ्तिताह करे थे, जिसकी वजह जो शेख पेट फिल्टर से होते हैं, MD लाइन, टोली चौकी, हकीम पेट, इन तमाम इलाका जात के अंदर कृष्णा वाटर लाइन और मांजरा, सिंगोर, इन तमाम वाटर लाइन जा रहे हैं। और उसी दरमियान में जो टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, बालरेड्डी नगर, इन तमाम इलाका जात के अंदर GHMC SNDP की जानिब से बाउंड्री का काम जो चल रहा है और चंद वजूहत की वजह से पिछले 15-20 दिन से काम रुका था। कल मैं MD साहब से बात कर आज तमाम वाटर वर्क्स के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सिद्धर बाबू और वाटर वर्क्स के मेंटेनेंस के डायरेक्टर किशन साहब और वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट के तमाम अहदेदार और ट्रांसमिशन के अहदेदार, GHMC के अहदेदार और GHMC मेंटेनेंस के अहदेदारों के साथ में तमाम तफसीलात का दौरा किया गया। जहाँ पर भी बड़ी पानी की लाइन, चाहे गोदावरी हो या कृष्णा हो या मांजरा हो या सिंगूर हो, इन तमाम जो लाइना बीच में आ रहे हैं उन तमाम लाइनों को हटाकर दूसरी जगह से अलाटमेंट किया जा रहा है। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूं कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए। आज के दौरे के अंदर टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, बालरेड्डी नगर और MD लाइन, बगदाद कॉलोनी, लंगर हाउस
और पेंशनपुरा इन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया। इंशाअल्लाह करीब में जल्द से जल्द इन तमाम काम मुकम्मल होंगे। आज के दौरे के अंदर वार्ड वर्क के अहदेदार और GHMC के और मजलिस के तमाम कारपोरेटर, नानानगर कारपोरेटर, गोली चौकी और गोलकुंडा और जमात के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर आज के दौरे में शामिल थे। इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरी जमात के सदर मोतमदीन को या कारपोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।